Hello everyone, this is your Shaker. Today I am back with a new video that is for consignment. In my previous video for consignment, I have explained you how to solve a simple problem with unsold stock in consignment. So in today's topic, I am going to explain you about consignment. In this problem, I am explaining you about the abnormal loss and also the unsold stock in consignment. So while doing this consignment problem, प्लीज डू वॉच दिस एंटायर वीडियो, देन आपको ये इक्वली सब समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा. सिंपल टेक्निक से कैसा सॉल्व करना है आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. सो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. राइट, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. एंड हियर क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखेगा. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन बेटा. ए एंड बी और इन कंसाइनमेंट. ए कंसाइंड 500 Bluetooth speakers costing rupees 900 each to B by incurring expenses freight 3000, carriage and packing 2000, and B incurred expenses of rupees 1000 freight, 1000 custom duty and 500 other expenses. During the transit, 20 Bluetooth speakers were totally damaged and insurance company claimed rupees 4000. B sold 470 Bluetooth speakers at the rate 1200 each. Prepare necessary ledger accounts in the books of A. चलो, क्वेश्चन क्लियर है कि A एंड B दोनों कंसाइनमेंट पे है. तो A इज द कंसाइनर एंड B इज द कंसाइनिंग. कैसा मालूम हुआ बेटा? A कंसाइंड 500 ब्लूटूथ स्पीकर बोला, तो A कंसाइन किया, तो A विल बी द कंसाइनर एंड B विल बी द कंसाइनी हियर. एंड हियर A is sending 500 Bluetooth speakers which is costing rupees 900 each, right? And A incurred expenses freight 3000 रुपए, carriage and packing 2000 रुपए. And during the transit the goods were damaged. कितने goods damage हो गए? Bluetooth speakers 10 totally damaged. And insurance company claimed only 4000. And B took the delivery of the remaining stock. And he incurred expenses of 1000 freight, 1000 custom duty, 500 other expenses. B sold 470. यानी 500 में से 10 डैमेज हो गए, 490 B रिसीव किया, and out of that 490 he sold only 470. So how many remain unsold here? 20 goods remain unsold here. So we have to calculate the unsold stock for 20 goods. Right. Let's start with the sum. So here first we'll calculate the abnormal loss, then we'll calculate unsold stock, उसके बाद अपन कंसाइनमेंट अकाउंट करेंगे. देखिए बेटा, यहाँ 500 ब्लूटूथ स्पीकर ए ने बी के लिए भिजाया था सेल करने के लिए. रास्ते में 10 गुड्स वेर डैमेज, 10 ब्लूटूथ स्पीकर्स वेर डैमेज टोटली, एंड इंश्योरेंस कंपनी उसको 4000 रुपए दे दी. तो पहले अबनॉर्मल लॉस कैलकुलेट कैसा करते देखेंगे. सो हियर स्टेप नंबर 1 इज वैल्यू ऑफ गुड्स डैमेज्ड. ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. वैल्यू ऑफ गुड्स डैमेज्ड. हाउ मेनी गुड्स डैमेज? 10 स्पीकर्स, ब्लूटूथ स्पीकर डैमेज हो गए, एंड एक का कॉस्ट प्राइस है रुपीज 900 ईच. राइट बेटा? सो 900 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 9000 rupees. Done. Right. Step number 2 is we have to add, right, consigner all expenses. consigner के total expenses जितने हैं देखना है. So consigner expenses here is freight 3000, carriage and packing 2000. Total expenses is 5000. So 5000 का expenses हो गया into how many unsold here? unsold की बात नहीं, how many destroyed? 10 destroy हो गया, 10 डैमेज हो गया रास्ते में, डिवाइडेड बाय कितने भिजाया था इनो? how many speakers were sent? 500, right? remember, so 10 डैमेज हो गए, number of goods damaged divided by number of goods sent. right, understood बेटा? so कितना हो गया ये? 100. Done. Now the total is 9100. क्योंकि यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंसेस नहीं आएंगे, क्योंकि रास्ते में गुड्स डैमेज हो गए, कंसाइनी
तक पहुंचे भी नहीं गुड्स, बीच में डैमेज हो गया, इसलिए ओनली वी हैव टू ऐड कंसाइनर एक्सपेंसेस हियर. सो दिस 9100 इज टोटल लॉस, या आप ग्रॉस लॉस भी समझ सकते हैं इसको, ग्रॉस लॉस, राइट. 9100. नेक्स्ट इज, यहां पे इंश्योरेंस कुछ क्लेम आया क्या बेटा? यस, वी हैव रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस का क्लेम कितना है? ₹4000 ओनली वी हैव रिसीव्ड. सो 4000 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5100. दिस 5100 इज कॉल्ड एज व्हाट? अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि टोटल लॉस हुआ है 9100, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम आ गया 4000, so the remaining loss is called as abnormal loss. Let's start with unsold stock calculation here. Now let's start with the calculation of unsold stock. बेटा अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करेंगे अभी. देखिए सीधी सी बात, 500 गुड्स में से 10 have been destroyed, remaining 490 में से 470 सेल हुए, तो बच गया कितना स्टॉक? 20 ब्लूटूथ स्पीकर्स और अनसोल्ड हियर. सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट. स्टेप नंबर 1 इज वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड. वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड. अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना है. कितना गुड्स रिमेन है? गया 20 Bluetooth speakers, and what is the cost price of each? 900 rupees each. 20 into 900 कितना हो गया? 18,000 rupees, right? So 20 into 900, 18,000 rupees. Next, step number 2, what we have to do is add consignor all expenses. कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे अभी अपन. एंड देखिए बेटा कंसाइनर के कितने एक्सपेंसेस है? टोटली 5000 है, राइट. 5000 इंटू हाउ मेनी अनसोल्ड? 20 ब्लूटूथ स्पीकर्स डिवाइड बाय हाउ मेनी सेंट, कितना भिजाया वो लिख लेना, लॉस भी रहने दो, कितना सेंट करे वो लिखना कैलकुलेशन पार्ट में. सो हियर 500 गया, सो कितना हो गया? 200 रुपए, 200 रुपीज, राइट. एंड स्टेप नंबर 3 is add consignee non recurring expenses. क्या करना है बेटा? कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो भी है वो ऐड करना है. सो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव गिवन यू द लिस्ट ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस का लिस्ट दिया था मैं, एंड ये क्वेश्चन में जो है कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस 1000 फ्राइट कैरेज कस्टम 1000 रुपीज है, अदर एक्सपेंस 500 है. अदर एक्सपेंसेस लिस्ट में नहीं है, सिर्फ फ्राइट एंड कस्टम ड्यूटी दोनों भी आएगा नॉन रिकरिंग में. 1000 plus 1000, 2000 rupees. So here 2000 is the non-recurring expenses of consignee into how many unsold? 20 divided by how many received. Received कितना है वो लिखना है. 500 में से 10 डैमेज हो गए तो he has received only 490. We have to take calculation for that, right? So 2000 into 20 divided by 490, which is how much? 81.63. सो अपन अब इसको राउंड अप कर सकते हैं, 82 रुपीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो 82 रुपीज लिख दिया मैं. सो 18,282 इज द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक. सो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू ये है, राइट बेटा. चलो लेट्स स्टार्ट विथ कंसाइनमेंट अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर फर्स्ट वी हैव टू राइट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. क्या लिखना है? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कितने गुड्स भिजाया वो आना है यहाँ पे. सो हाउ मेनी गुड्स ही सेंट? ही हैज सेंट 500 ब्लूटूथ स्पीकर्स एट द रेट 900 ईच. ठीक है बेटा. सो 9 5 45, सो हो गया 4,50,000. डन. नेक्स्ट कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनर का एक्सपेंसेस. कंसाइनर का एक्सपेंसेस टू बैंक अकाउंट बोल के लिखना चाहिए, उसका नाम नहीं आता है. सो बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस. सो व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर हियर? 5000 इज द टोटल एक्सपेंसेस, राइट. नेक्स्ट कंसाइनी. कंसाइनी कौन है? बी अकाउंट एक्सपेंसेस. बी के टोटल एक्सपेंसेस लेना है, यहाँ पे सब लेना है. सो
1000 freight, 1000 custom duty, 500 other expenses, total 2500 expenses हो गए. नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंसाइनी का सेल्स. सो बी अकाउंट सेल्स. ओके बेटा. सो कितने सेल किया इन्होंने? 470 एट द रेट 1200 each. The sales is 470 into 1200. How much? 5,64,000 is the sales. राइट बेटा. अब यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक है. कितना अनसोल्ड स्टॉक है? 18,282. वी हैव टू रिकॉर्ड द अनसोल्ड स्टॉक हियर क्रेडिट साइड में बाय अनसोल्ड स्टॉक. कितना है अमाउंट? 18,282. डन. उसके बाद अबनॉर्मल लॉस कितना है बेटा? 5,100. वो भी अबनॉर्मल लॉस लिखना है यहाँ पे बाय अबनॉर्मल लॉस. ओके, 5,100. डन. उसके बाद इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो भी लिखना है क्रेडिट साइड में. इंश्योरेंस का क्लेम 4,000 रुपीज. डन. सो क्रेडिट साइड में सेल्स लिख दिए, अनसोल्ड स्टॉक लिख दिए एंड अबनॉर्मल लॉस एंड इंश्योरेंस क्लेम. नाउ लेट्स गो विथ कमीशन. यहाँ पे टू बीज अकाउंट कमीशन is 5,64,000 के ऊपर 10% is the commission, right? So 10% commission कितना हो जाएगा? 56,400 is the commission, right sir? Now let's total both the sides. Okay, so credit side is 5,64,000 plus 18,282 plus 5,100 plus 4,000, which is 5,91,382 is credit side total. And debit side total कितना है? 4,50,000 plus 5,000 plus 2,500 plus 56,400, 5,19,300. ये 5,19,300 900 जो है डेबिट है. क्रेडिट साइड का है 5,91,382. नाउ क्रेडिट इज मोर, सो निकालेंगे टोटल कितना है? माइनस 5,91,382, 77,482 रुपीज. कितना है बेटा? 77,482. 77,482. दिस इज प्रॉफिट. सो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, profit. Done. So now highest total both the sides 5,91,382. Okay, right. So after completion of consignment account करें तो क्या है? अपने को प्रॉफिट मिल गया 77,482. Let's proceed with consignee account. consignee कौन है यहाँ पे? B. सो बी इज द कंसाइनी बेटा. तो बी का अकाउंट बनाना है पर्टिकुलर रुपीज. अब देखो बी के ट्रांजैक्शंस क्या हुए टोटल कंसाइनमेंट में. बी हैज रिसीव्ड द कंसाइनमेंट बाय इंकरिंग एक्सपेंसेस 2,500 एंड ही सोल्ड द गुड्स एंड ऑल्सो उसको कमीशन भी मिल गया. ये 3 ट्रांजैक्शन है बी के. सो नाउ लेट्स सी व्हेन लेजर टू लेजर होता तो ऑपोजिट साइड में आ जाता. सो बी अकाउंट यहाँ पे बी इज अवेलेबल क्रेडिट साइड, उसको डेबिट साइड में लेके आते हैं. To consignment account 5,64,000, right? ब्रैकेट में सेल्स एंड यहाँ पे बी एक्सपेंसेस डेबिट में है या क्रेडिट में ला लो. बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस 2,500. नेक्स्ट कमीशन बाय कंसाइनमेंट अकाउंट commission which is 56,400. Now let's total both the sides. कंसाइनी ने सेल कर दिया है 5,64,000 में, उसमें से उसका एक्सपेंडिचर 2,500 पकड़ के एंड कमीशन 556,400 पकड़ के रिमेनिंग 5,05,100. कितना? 505,100 ये अमाउंट सेंड कर दिया है.
So write it as by bank account, amount to be remitted to consignor. Right now, total both the sides 5,64,000, 5,64,000. Right, sir. So this is the procedure for doing unsold stock, abnormal loss, egg problem. And next video I will show you how to do invoice price problem. So beta please watch the entire videos, समझ में आ जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको. एंड योर शेखर साइनिंग ऑफ, बाय.